جس کی بیٹی کو جس دردناک طریقے سے نکاح کے بعد بھی چچا سسر زنا کرتا رہا، کزن زنا کرتے رہے، ہسبینڈ زنا کرتا رہا، نکاح کے فوراً بعد ان کو طلاق دے گیا۔ وہ نکاح کہاں جس نے ان کا نکاح کروایا اس کو بھی پتا تھا بچی کی عمر 14 سال ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، پھر بھی زبردستی اس کی عمر 18 سال لکھوائی گئی۔ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو میں وزیر اعظم ہاؤس یا سپریم کورٹ کے سامنے میں اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لوں گا۔ یہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب، میں یہ خودکشی کر لوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ ہے ہوا کی بیٹی جس کا نام ہے طلحہ مشتاق۔ یہ ہیں ان کے والد صاحب مشتاق صاحب، جن کی چھوٹی سی ایک حجام کی دکان ہے کشمیر میں۔ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ جو سانحہ ہوا، وہ سننے کے بعد آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ محمد مشتاق صاحب گجرانوالہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کے کرائے کے گھر کے بالکل سامنے والا گھر ایک خاتون کا تھا جن کا نام تھا سیما۔ ان کی بیٹی عالمہ فاضلہ بن رہی ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ سیما صاحبہ نے اس 14 سال کی لڑکی کو اپنی چچی کے گھر بھیج دیا کہ وہاں ان کے گھر جا کر صفائیاں کیا کرو۔ جب یہ اپنی استانی جی کے حکم پر وہاں پر پہنچی تو عثمان نامی شخص جو کہ لبنہ کا بھتیجا ہے، اس نے ان کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ عثمان صاحب نے اس کے بعد ان سے رابطہ کیا، ان سے معافیاں مانگی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا میں معافی چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ وہ درندہ صفت شخص ان کے گھر آیا اور پھر سے اس بچی کے ساتھ جس کی عمر صرف 14 سال ہے زیادتی کرنے لگا۔ ان کے والد صاحب کشمیر سے علی صبح واپس آئے تو آگے جو معاملہ دیکھا وہ میں کیمرے پر بیان نہیں کر سکتا، جس کے بعد عثمان وہاں سے فرار ہو گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد اپنی چچی لبنہ، اپنے چچا اشفاق اور کزن ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر آ گیا اور وہ لوگ ان کے والد صاحب کے پاؤں پڑ گئے کہ آپ کی اور ہماری عزت کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس بچی کو ہم اپنی عزت بنائیں گے اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب جرم کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور طول پکڑتی جاتی ہے۔ بچی کی عمر 14 سال ہے جبکہ آپ نکاح نامے پر دیکھ سکتے ہیں 18 سال لکھوائی گئی ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ اگر بچی کی عمر 14 سال لکھوائی گئی تو ہم پر پرچہ ہو سکتا ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح کس طریقے سے ہو رہا ہے، لہٰذا زبردستی 18 سال عمر لکھوا کر 1000 روپیہ ان لالچی لوگوں نے حق مہر لکھا اور نکاح کے بعد رخصتی کی صورت میں ان کو ان کے گھر سے لے گئے۔ جس گھر میں لے کر گئے وہ ان کا ذاتی گھر نہیں تھا بلکہ ان کی گلی سے دور ایک چوتھے پانچویں محلے میں ایک کھنڈر نما مکان جس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں اسی مکان کے اندر موجود ہوں جس میں پلاسٹر بھی نہیں ہے، صرف ایک پنکھا لگا ہے، ایک چھوٹا سا گندا سا میٹرس ہے اور اس کے ساتھ 2 تکیے ہیں اور 2 سے 3 آپ کو یہاں پر گندے کپڑے نظر آ رہے ہیں۔ اشعار کے پردوں میں ہوں میں جن سے مخاطب وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ یہ تمام لوازمات، یہ تمام چیزیں، یہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اس کمرے میں اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا۔ عثمان صاحب نے اس کے بعد فوراً ان کو منہ زبانی 3 طلاقیں دے دی۔ عثمان کے چچا اشفاق اور کزن ابو بکر یہاں پر آئے اور ان کو 15 دن تک مسلسل زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ ان کو مختلف میڈیکیشنز اور نشاور کیپسول دیے گئے جس کی وجہ سے یہ ہوش میں نہیں آتی تھی۔ یہ مکان بالکل خالی ہے۔ محلے داران سے ہم نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مکان کئی دنوں سے خالی ہے، بچی اندر تھی یا نہیں اس چیز کا ان کو علم نہیں، لیکن لوگ یہاں آتے جاتے رہتے تھے جس میں اشفاق اور عثمان کا کزن ابو بکر شامل ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد جو مشتاق صاحب ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، تو ان کے گھر گئے تو گھر میں اپنی بیٹی کو نہ پایا، جس پر ان کے گھر والوں نے کہا عثمان اور طلحہ ہنی مون پر کشمیر گئے ہوئے ہیں۔ والد صاحب نے مطالبہ کیا کہ میں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا نمبر دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ کشمیر سگنل نہیں آتے، لہٰذا وہ آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی۔ عثمان کا چچا، عثمان کا کزن جب زیادتی سے ان کا دل بھر گیا تو اس بچی کو جو کہ عالمہ فاضلہ کا کورس کر رہی تھی انہی کے گھر جاتی تھی، اس کو 3 لاکھ روپے کے عوض چند اوباش لوگوں کو بیچ دیا۔ وہ لوگ بھی اس پر تشدد کرتے رہے اور زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ جب ہماری اس بہن نے مزاحمت کی تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو تمہیں خریدا ہے، تم مزاحمت کیوں کر رہی ہو، لہٰذا وہ یہاں سے لے کر اس کو لاہور چلے گئے۔ ان اوباش لوگوں میں سے ایک شخص کو ترس آیا اور اس نے ان کے والد صاحب کا نمبر ان سے لیا، ان کو کال کی اور کہا کہ داتا دربار لاہور کے قریب سے آ کر بچی کو لے جائیں۔ مشتاق صاحب اپنی بہن کے ساتھ بچی کو لینے وہاں گئے۔ بچی دور سے باپ کو دیکھ کر لپٹ لپٹ کر رونے لگی اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر آ گئے۔
उस दिन से इशफाक, उस्मान, अबू बकर, यूसुफ और इनके तमाम रिश्तेदार यहाँ से मफरूर हैं। FIR के लिए दरखास्त दी गई तो FIR में जिना की सिर्फ एक दफ़ा लगाई गई, जबकि इनका कहना है कि इनके साथ गैंग रेप भी हुआ, इनको बेचा भी गया, उसकी दफात भी शामिल नहीं की गई। जब हमने मुतल्लिका थाने की SHO जनाब तैयबा हमीद साहिबा से रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या आपने मुल्जिमान की गिरफ्तारी डाल दी है, क्योंकि FIR तो हो चुकी है, FIR के फ़ौरन बाद मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाते हैं, जिस पर उनका कहना था कि हमारी अभी तफ्तीश चल रही है और पर्चा कटे भी आज तकरीबन 6 से 7 दिन हो चुके हैं, मुल्जिमान की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। उनसे ऑन कैमरा आकर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि मैं ऑन कैमरा आकर कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि अभी तफ्तीश चल रही है। ये कैसी तफ्तीश है कि 6 दिन पहले आपकी FIR दर्ज होती है और उसके 6 दिन बाद तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी नहीं है, और कुछ ज़राए हमारे ये बताते हैं कि वहाँ उनको प्रोटोकॉल में थानों में रखा गया, उनको खाने खिलाए जाते हैं, मुर्ग मुसल्लम पहुँचाए जाते हैं और इनको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं कि अपनी दरख्वास्त और FIR वापस लें, सुलह करें। आपकी बेटी से सिर्फ और सिर्फ निकाह इसलिए किया गया था कि मेरे पे कोई पर्चा ना होता। ये गरीब वालिद जो कि हुज्जाम का काम करता है, इनका आखिरी मुतालबा यह है कि अगर हमें इंसाफ ना मिला, मुल्जिमान की गिरफ्तारी ना हुई तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने जाकर ये खुदकुशी या खुद सोजी करने पर मजबूर होंगे। ये सारा मामला हुआ कैसे और अब आप इंसाफ चाहते किससे हैं? मैं सर इंसाफ चाहना वा, मेरी बच्ची नाल ज़्यादती हुई है। असीं गरीब आदमी हाँ, बच्चियां साडे घर में इज्जत हुंदियां ने, साडे कोल यही सोना हुंदा है, यही पैसा हुंदा है, साडी बच्चियां साडी इज्जत ने। अगर साडी इत्थे इज्जत महफूज नहीं है तो सानू इस दुनिया ते जीण दा कोई हक नहीं। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नाल मैं मुखातब हो रहा हाँ, अगर तुहाडे कोल इंसाफ नहीं है तो सानू जहर दे के अपनी हत्थी मार के सानू दफन कर दो। आपकी बेटियाँ कितनी हैं? मेरी 4 बेटियाँ हैं। बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं। काम क्या करते हैं आप? ये मैं हजाम का काम करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? रोज़ का 300, 400, 500, 300-400, 500 रुपया क्या करता है मेरा? ये मकान किराए का? 10,000 रुपया मेरा मकान का किराया है। जब आपने अपनी भी इज्जत बचाने के लिए, उनकी भी इज्जत बचाने के लिए, जब उन्होंने आपके पाँव पकड़ लिए तो आपने फैसला किया कि बच्ची का निकाह कर दिया जाता है, तो वो निकाह के बाद भी तलाक दे गए और सब लोग बदसलूकी करते रहे, तशद्दुद करते रहे, फिर उसको 3 लाख के एवज़ बेच दिया, तो इस सारे मामले का आपको इल्म क्यों नहीं हुआ? उसने गन पॉइंट पर जो कुछ भी करता रहा, गन पॉइंट पर करता रहा। उसने बोला कि अगर तूने किसी अपने घर वाले किसी को भी बताया, तेरे बाप को भी मार देंगे, तेरी माँ को भी, तेरे बहन भाइयों को भी हम ख़त्म कर देंगे। मेरी बेटी जो वो घबरा गई थी, उसने डर के मारे किसी को भी नहीं बताया। ये तो हमें उस दिन पता चला जब मैंने खुद देखा है। आप आलिमा फाजिला का कोर्स कर रही थी? जी। उस्मान के साथ जब निकाह हो गया, आप उसकी शादी में आ गई, तो सही रहता था आपके साथ? सही क्या रहना है, उसने आते ही तलाक दे दी थी मुझे उस्मान ने कहा मैंने तो निकाह सिर्फ ज़ना के केस से बचने के लिए किया है। वो तलाक देकर यहाँ से फरार हो गया? तलाक दे के बाहर चला गया। मैं रोने लग गई हूँ तो आंटी लुबना जो उसकी चच्ची हैं मुझे तसल्ली दे के वो उसके पीछे चली गई हैं। यहाँ पे जब हम आए तब पहले से 2 आदमी मौजूद थे, अंकल इशफाक और उस्मान का जो कज़न है अबू बकर। उस्मान के चचा और उस्मान के कज़न? जी। उन दोनों ने और एक जो आदमी था यहाँ पे नाम मालूम, इन तीनों ने मेरे साथ ज़्यादती की, ज़िना किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करते रहे हैं। आंटी लुबना, अंकल हफीज़, अंकल यूसुफ और उस्मान 3 आदमी को लेके आया। आपने शोर क्यों नहीं मचाया? आप मोहल्ले वाले भी इर्द गिर्द थे, आप मुजामत भी तो कोई कर सकती थी ना, कुछ किसी साथ वाले को भी तो पता चलता। मैंने बहुत की है, मैं चीखें भी मारती रही हूँ, मेरे मुंह पे हाथ रख लेते थे ये। उसके बाद जब आंटी अंदर आई हैं, इन्होंने मुझे कपड़े पहनाए हैं, मुझे ठीक, मेरा मुंह थोड़ा ठीक ही है, तो मुझे वो जो आदमी आए हैं 3 उनके सामने बिठा दिया और मेरा 3 लाख में सौदा कर दिया उनके सामने। ये हैं मोहम्मद मंशा साहब जो इनके मोहल्लेदार हैं और घर के बिल्कुल साथ वाला घर इनका है। इस बच्ची को शादी के बाद वो यहाँ पर लेकर आए हैं। कुछ लोग भी आते जाते रहे, कुछ देखा आपने ऐसा मामला? देखा। कौन लोग आते थे? मैं इतने बह गया ए थड़ी दे उत्ते, ये बच्ची नूं बंदा पियांदा है कि मैं तेन तलाक देता है। लो जी ये तलाक दा रौला बनया है। 3 जी इधरों आए, वो भी अंदर वड़ गए। लो जी 3-4 दिन ते यही वाकया असीं वेंदे रहे। वो लड़के आते रहे और अंदर जाते रहे। कोई आउंदा रहा, कोई जांदा रहा, कोई आउंदा रहा, कोई जांदा रहा। जिन आदमियों को 3 लाख रुपए में इन्होंने बेचा, पैसे आपके सामने उन्होंने दिए उनको? मेरे सामने दिए हैं। आप तब क्यों नहीं बोली कि आप मुझे क्यों बेच रहे हैं? मुझे बोलने ही नहीं दिया उन्होंने कुछ। उन दरिंदा सिर्फ लोगों ने जब आपको बेच दिया तो वो 3 लाख रुपए किसने पकड़े? अंकल इशफाक ने पकड़े थे। 3 लाख रुपए लेकर तो आपको रवाना कर दिया उन्होंने उन लोगों के साथ? नहीं, मुझे यहाँ पे ही रखा है उन्होंने, 5-6 दिन यहाँ पे रखा है। दवाई 5-6 दिन क्या करती रही?
यहाँ मैं बेहोश ही रही हूँ, दवाइयाँ देते रहे। मुझे जब भी होश आती थी मुझे मेरा जिस्म दर्द होता था, ऐसा लगता था किसी ने मारा हो या मैं कहीं से गिरी हुई हूँ। आप इस कमरे में 15 दिन रही हैं, तो खाती पीती कहाँ से रही हैं? जिनके आगे बेचा था वो थे, उन्होंने खाना देते थे, मेडिसिन दे देते थे कि ये खा लो ठीक हो जाओगी। मैं वो मेडिसिन खाने के बाद मुझे होश नहीं रहता था। तो जब आप उन 3 लोगों के साथ लाहौर चली गई तो आपको पता चला कि आप लाहौर कैसे पहुंची हैं, या तब भी बेहोशी की हालत में थी? बेहोश ही थी मैं। मुझे जब यहाँ से लेके गए हैं, किस चीज़ में लेके गए हैं, कैसे लेके गए हैं, बेहोश थी तो मैं। लाहौर में आपने अपने वालिद साहब से रब्ता कैसे किया? तो उन्हीं में से जो आदमी था एक, उसने, मैं हर वक्त तो वहाँ पे रोती रहती थी, तो उस आदमी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें किसी का नंबर आता है तो मुझे बताओ, मैं रब्ता करता हूँ। मैंने अपने अब्बू का नंबर दिया उसको, तो उसने मेरे अब्बू को कॉल करके कहा कि अपनी बेटी यहाँ से आके ले जाए। जिन लोगों को इन्होंने 3 लाख के एवज आपको बेचा था, वो भी आपके साथ कोई नारवा सलूक या तशद्दुद या बदसलूकी, जिनसी तशद्दुद करते रहे हैं? जी, मेरे साथ उन आदमी में से एक आदमी मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा है। ये तमाम मामला जब आपने पुलिस स्टेशन में पुलिस को बयान दर्ज करवाए तो मुतल्लिका SHO साहिबा का क्या कहना था? कोई ताउन नहीं किया उन्होंने। 24 घंटे के बाद उन्होंने पर्चा लिया है, उनको लेके आए हैं। ऐसे वो वहाँ पे बैठे हुए हैं जैसे कि वो घर में हो। इनकी रुदाद कितनी एक तकलीफदेह है, मैं मज़ीद सवालात करना भी नहीं चाहता। हम लोग भी बहनों वाले हैं, माँओं वाले हैं, बेटियों वाले हैं, और ये बिल्कुल मेरी एक छोटी बहन की तरह है। 14 साल इसकी उम्र है, नाबालिग है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भी इसमें हरकत में आए इस बच्ची के ख़िलाफ़, इस छोटी सी कली के ख़िलाफ़ जो आलिमा फाजिला कुरान की सूरतें पढ़ना चाहती थी, उसको किस सूरत में किस जगह पर पहुंचाया गया। यकीन करें कि रोंगटे खड़े होते हैं ये तमाम कहानी सुन के। जब ये बार बार मामलात मीडिया की नज़रों में आते हैं, इज़्ज़त नफ्स इनकी मजरू होती है, जिसकी वजह से हम इनके चेहरों को ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये भी हमारी मजबूरी है कि जब तक हम झिलझोड़े ना, मीडिया पर इन लोगों को लेकर ना आए, केस को हाई प्रोफाइल बनाए ना, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। FIR दर्ज कर देती है, 6 से 7 दिन हो गए हैं। मजाल है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया हो, मुल्जिमान धन दनाते हुए फिर रहे हैं। इस मुआशरे में इस गरीब हुज्जाम की जो एक किराए के मकान में रहता है, इसकी क्या रिस्पेक्ट रह गई होगी? ये तो जीते जी मर गया होगा। जिसकी बेटी को जिस दर्दनाक तरीके से निकाह के बाद भी चचा ससुर जिना करता रहा, कज़न जिना करते रहे, हस्बैंड जिना करता रहा, निकाह के फ़ौरन बाद इनको तलाक दे गया। वो निकाह कहाँ, जिसने इनका निकाह करवाया उसको भी पता था बच्ची की उम्र 14 साल है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती उसकी उम्र 18 साल लिखवाई गई। कहाँ कहाँ इस घर में जुल्म हुआ है। आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं तो सर आप कर सकते हैं। जी, मैं मुतालबा करना चाहना हुकूमत पाकिस्तान नाल सानू इंसाफ मिलना चाहिए। SHO साहिबा जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ तामल नहीं कर रही। मुलजमान ने गिरफ्तार फड़े ने, लेकिन वो समझ लो अपने घर ही बैठे ने। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं वज़ीर आज़म हाउस या सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं अपने बच्चों समेत खुदकशी कर लूँगा। ये मैं कसम उठाकर कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब, मैं ये खुदकशी कर लूँगा। आप कैसी सज़ा दिलवाना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ इन्हें फांसी हो, फांसी से भी बढ़कर कोई सज़ा है तो वो मिलनी चाहिए इन्हें। आपने बाप बेटी का मौक़िफ़ सुन लिया है। हमारी भी हाथ जोड़कर अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस केस पर सो मोटो एक्शन लें। मुतल्लिका पुलिस हुकाम क्यों नहीं इस पर उनके कानों पर जूं रेंग रही कि अभी तक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब बात की जाए कि अपना मौक़िफ़ दे दें SHO साहिबा जो कि थाना दुल्हे की हैं, तैयबा हमीद साहिबा, तो आगे से उनका कहना है कि हम ऑन कैमरा मौक़िफ़ नहीं दे सकते। आप हमारी तफ्तीश चल रही है तो तफ्तीश के दौरान हम कैमरे पर बात ही नहीं करते। जनाब, आप कैमरे पर बात ना करें, हमें आपको कैमरे पर लेकर आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक लम्हे के लिए सोचें। खुदा न खास्ता ये मेरे, आपके या इस मुआशरे के किसी भी इज़्ज़तदार और उस शख्स के साथ ये ज़्यादती हो जिसमें इतनी पावर ना हो और वो अपनी बेटी की रुसवाई इस तरीके से देख रहा हो, बदनामी उसकी हो रही हो, तो फिर मुझे बताएं कि इस मुआशरे में रहने का कोई भी जवाज़ हम किसी भी तौर पर पेश कर सकते हैं? यकीनन नहीं। इस हवा की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए डेली पाकिस्तान ने अपने प्लेटफॉर्म से जितनी आवाज़ बुलंद कर सकता था कि हम मज़ीद भी इनकी आवाज़ बनते रहेंगे और मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।